So welcome Amit Kumar, and it is my pleasure to introduce you to the audience. That you qualified under the flagship course of Knowledgeist SBI CBO 2023. We are very proud of you. So please share your journey. And today I will only listen to yours. Where are you from? How many attempts? Everything which you want to share. Please. Thank you, sir. Thank you, sir, for your guide. Generally, sir, last year I have a attempt. Generally, currently I am working with Axis Bank since last 5 years, and in the private sector banks, there's a lot of hectic jobs and everything else. In the last year, I got to know about the CBO, and I have not prepared anything and just applied for that and cleared the exam, but not able to crack the interview last year. Finally, not able to make it to the merit list. But this time, I came very serious about the CBO, and then I got to know about the Knowledgeist last year only. And then once the application notification rolled out, and I enrolled with the Knowledgeist portal. And with the live sessions going on, and multiple live sessions going on about the classes, about the banking and the aptitudes, I got to know that कि ये easily हो सकता है सर. Then exam हुआ सर, exam अच्छा गया था. तो I'm pretty sure at the time of exam कि exam तो clear हो जाएगा, उस समय तो no doubt था. जब exam हो गया, exam का result आया तो easy था. But interview के time पे एक जब आपके साथ mock हुआ था, आई थिंक सर ने मॉक लिया था मेरा, तो उन्होंने 2-4 चीजें बताया था कि अभी कॉन्फ्रेंस के ऊपर बहुत अच्छा है, बट 2-3 चीजें बोली थी, वो मैंने थोड़ी अच्छी करी, जिसकी वजह से आई गॉट द हाई 50 out of 50 in the interview. Very good. And well done. And in the OBC category, I am easily qualified for this role. मतलब सर, अगर मैं इकोनॉमिक्स में अपने बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो मैं इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं, ग्रेजुएशन मेरा. और सर फैमिली इज नॉट द, ऐसा कुछ फाइनेंशियली कुछ नहीं था, बट हाँ जज्बा था, मोटिवेशन था कि हाँ कुछ तो करना है सर. और जब आपकी गाइडेंस मिला और ये सब मिला तो सर हो गया बस. Thank you. Double congratulations for the selection, and scoring 50 out of 50 in interviews is not a cakewalk. It's a great achievement by you. बहुत खुशी है हमें. और आगे बहुत सारे लोग हैं, आपको तो पता है कि कितने सारे लोग सिलेक्टेड हुए हैं Knowledgeist से, और हम एक थंबनेल चला रहे हैं. Nobody has given 1% of our results in any CBO, BOM, RRB exam. Am I right or wrong? Sir, it is correct. मतलब those student who is enrolling with you, sir. इधर देखो सक्सेस सेशन चल रहा है. Faiz, okay, just a second. Yes. Okay, yes, go ahead. Sir, मतलब those student who is enrolled with you, sir, and studying as per your guidance, sir, 100% student will be qualified. It is sure. It is sure for that. Those students not studying with you, it's their choice. Those who are studying with your materials and with your guidance, you are guiding about the process starting at the time of exam. In the exam, sir, you have motivated us before one day about the written. I have not prepared yet anything. On the last day, you have one hour live session. You have 30 minutes live session you have given to us, and on that day, we are very confident that हाँ लिख तो लेंगे कुछ ना कुछ, और इतना लिखते हैं एग्जाम में, इतना लिखते हैं मतलब डेली लाइफ में अपना, तो कुछ तो अच्छा लिख ही लेंगे डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए, राइट? हाँ, डिस्क्रिप्टिव में मतलब गाइडेंस से चलेंगे तो 100% से 1% तो दूर की बात है, 100% सिलेक्शन होते ही होंगे. थैंक यू अमित. बहुत सारे लोग लाइन पे हैं, सबका बात सुनना है आज. आपसे फिर बात करेंगे आगे चल के. यू पीपल आर माई एसेट. आप अभी इंडिया के सबसे बड़े बैंक में किसी ना किसी कोने में आप सारे लोग पोस्टेड रहेंगे. इट्स ए प्राइड फॉर मी. इंडिया के, भारत के किसी भी कोने में जाऊं, और आगे चलकर आप लोगों को बाहर का भी पोस्टिंग मिलेगा. SBI में अब्रॉड पोस्टिंग भी मिलता है, तो मेरे लिए तो विन विन सिचुएशन है. सो पार्टी आपके तरफ से ड्यू है, मिलते हैं. जरूर आपसे मिलेंगे, जरूर देंगे. अभी तो सर अभी बॉम्ब का भी इंटरव्यू लाइन अप है. बिल्कुल उसके लिए आप प्रिपेयर करिए. डबल सिलेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छा. और हमारे सारे स्टूडेंट्स का ऐसा ही होता है ऑलमोस्ट. अगर एक एग्जाम में क्रैक करते हैं, दूसरे में डेफिनेटली क्रैक करते हैं. सी यू इन द अदर साइड. थैंक यू अमित. टाइम कम है, आपसे बहुत कम सुनना पड़ा.
बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइन में हैं। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज, कोई मैडम थे, प्लीज कम फॉरवर्ड, एक एक करके बात करते हैं। आइए अपना वीडियो ऑन करिए, डिस्कस करते हैं। पवन, वेलकम टू द सेशन। Sir, And thank you, sir. I want to hear your success stories. Others, please off your video for the time being. I want to be with Pawan for next 2 to 3 minutes. Pawan, your take, how you qualified, how many attempts, what is your journey so far in banking, and few words at the end about knowledgeist. All yours, please. Yes, sir. Actually, before joining, I right now I'm working as assistant manager in UCO Bank, Goa, and I joined in 2020. Before that, in 2019, I just missed by 2 marks in the interview of SBI PO, sir. I never used my actually I'm quite against reservation and all these things, so I never used my reservation, and because of that I couldn't get through interview. If I could have used that in reservation, I would have been selected in SBI PO. My father was very bad. I felt very bad about it, my parents and everything, and I thought ठीक है, टाइम मेरा नहीं है, आगे चलते करके, इसलिए IBPS PO में मैंने मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं तब से यूको बैंक में ज्वाइन हुआ सर। उसके बाद 2 साल के बाद अभी SBI CBO का ऑप्शन में अपॉर्चुनिटी मिला, और मेरे पहले दिन से मैंने नॉलेज का कोर्स लिया सर। आई वाज वेरी perfectly guided. What in simple words, if I wanted to put it, what do you say? You have to read what is required. That's what the knowledge subject is there. It gives the knowledge whatever is required for the exam, and at the same time, and for the mock interviews and everything. Unfortunately, I couldn't give at least one mock interview. Okay. But I have attended every day, and I have listened to everyone's mock interview. So आपने अपना ग्राउंड प्रिपेयर कर लिया, दूसरे क्या कर रहे हैं? It is not about you. What your competitors are doing wrong, you spotted it out, right? Yes, sir. Competitive exam में वैसा भी होता है, ठीक है? या तो आप अपना स्कोर बढ़ा लीजिए, या फिर बाकी लोगों का कमजोरी देख लीजिए और उससे थोड़ा अलग करिए, या फिर उनका स्कोर कम हो या आपका स्कोर ज्यादा हो. Anyway, you win. Very good. And finally, sir, I always say, wise people learn from their own mistakes, but those who are aggressively intelligent, those who are extraordinarily intelligent, they learn from others' mistake, and you have done that right. Very good, Papa. Yes, sir. Very good. I'm not at all feeling that I did not get a chance to give you a mock interview. Okay, you are on their shoes. Very good. Very good, Pawan. I think we lost the connection with Pawan. Yes, Pawan, you are back. Okay. Yes, sir. But I couldn't get the, I'm not at all feeling, but I got the mistakes rectified. I have done everything. And now the twist of the story is, sir, if I did not use my reservation also, I could have passed through, because I got more than general marks also. Well done. Well done. Yes, sir. This is what knowledge stands for. We believe in your power, your motivations. You people continue your preparation, being in a hectic job schedule. Tremendous job. Thank you, Pawan. Yes, sir. One more thing, sir, small point I want to add. After getting the result, I have said in Telegram groups and everything. And many people called me. 2 people called me regarding how did you prepare and everything. I suggested only yours, sir, because it's straight to the exam, whatever is required only. From my side, it's a small help from, I don't know how much it will help you, but it's kind of thank you. I don't give gratitude kind of thing. That's thank you. I also don't believe in digital marketing. We don't do that because we got a tremendous word of mouth. We get a tremendous recommendations from our existing students. It's kind of gratitude, sir. I don't say it's not helpful. It's kind of gratitude. Thank you, Pawan. You don't have to ask me, but still it is my duty to do all these things. Thank you for the kind gesture. And my father was very happy all these things, because I was about my history, they are saying it's a kind of a revenge. Yeah, it's a sweet, it's a poetic justice. I must tell you, it's a poetic justice. Great. And my best wishes to your dad also. Please convey my best wishes.
Thank you. This is the best revenge what he could arrange through his son. Okay, thank you. Yes, sir. Thank you, Right, Pawan. right, sir. Good Yeah. day, sir. Thank you, bye. Due to time constraint, I have to cut you short. So, but anyway, nice talking to you. Next, Prashant. Thank you, sir. Anyone else? Anyone else? If there are any. Yeah, Prashant is here, sir. Prashant, yes, Good evening, Prashant. sir. Your points, please. Good Then evening. Shravan Yeah. definitely will go next. And any madam is Yes, there, sir. you can come after that, so that you will not make you wait for long. Yes, Prashant, your views, please. Yeah. First, sir, I will thanks to you because you individually, I just call you. You remember my name, Prashant. So many time I called you, and in every time you just pick my call and solve all my queries and doubts. Because I am in dilemma now that I am from backend, so it's very difficult for me to face the interview, which I am going to join the branch banking, and I haven't any experience regarding this, so I am just little bit scared about this. But you just solve my all queries, and finally I got a good score in interview, and finally I just cracked. And one more thing, that in this difficult exam, you just know that this year the exam was very tough, GK Yes. portion, all those portion. Still we are enjoying in the exam because we just recall all the GK and all the videos that you shared at the last time, and we just recalling and we getting the answer in that exam. So this is the great platform, I will say, because the material that were produced from your side, it is tremendous. Thank you, So I Prashant. just Thank thanks you. to the institute, and I especially thanks to you because I haven't found such a director who is individually and personally solving the query of the candidate in any time. So this is very grateful for me to that I joined this institute. Last you. time I just I think 2 to 3 marks I just list from in RRB. That's why I not get selected. But this time I prepared very seriously. So this is my first attempt. And Yes, I got selected. I still remember you called me asking me, Yeah. sir, you Yeah, I are telling everybody to have branch banking exposure, showcase that. I have just scared about this, but I have no finally- experience, so how can I make it up? I said there is no need of making it up. You just because- be yourself. Yeah, I just found that in interview now they are not interviewing the person's ability, what they say, what they do. They just only judging the I mean to say the personality of the person and the Yeah. capability, what he can do. If he is not in a sale now, doesn't matter. If he is just searching the capability. Yeah, So yeah. that I just found, and from my profile they are asking question and my economics background. So I just cracked it. So this Very is good. very good for me. Well done, Prashant. Congratulations. Due to time Thank you, constraint, sir. Thanks a lot. I could not Okay, make it okay. along. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you. Thank you for your kind words. I hope all the success in your future interviews. Thank you. Okay, thank you, sir. Thank you. Yeah. Yeah, next, please. Next. Good evening, Shravan. sir. Prashant. Prashant, yes. Yeah, sir. Good evening, sir. Actually, Common videos. It will be helpful. Today, everybody is on videos. So, Shravan was waiting. Yeah, Shravan, I know you. Shravan can also come. Prashant again. Next, Prashant. Yes, sir. Yes, Prashant, your take. Then Bises will go with everyone. Yeah. Actually, sir, I was not a paid member of your, but actually I succeeded with your YouTube video. So I'm very thankful to you, sir. Actually, this was my first attempt, and the first attempt I cracked the exam. And all credit goes to you because आपका ही सब वीडियोस देख के फ्री के वीडियो देख के मैंने ये क्लियर करवाया है सर. ठीक है, कोई God बात bless नहीं है. you. आप हमारे लिए एकलव्य हैं. नहीं सर, आप मतलब जो अपने जितने भी वीडियोस है वो वीडियो के बाहर का नथिंग, कुछ भी और नहीं था बाहर का, सब जो आपने बताया वही है, और वो इंटरव्यू में भी मुझे उसका फायदा हुआ है सर. तो Very दिल good. से बहुत थैंक यू, और गॉड ब्लेस यू सर. आप ऐसे ही हम जैसे बच्चों की लाइफ बना रहे हैं. आपकी बहुत लंबी लाइफ हो सर, और नहीं, लंबा जीना नहीं है, मगर जितने दिन जिएंगे अच्छे से जीना चाहते हैं. लंबा एकदम जी अच्छे कर से क्या जिएंगे सर. करेंगे. ठीक है, हम जैसे कि यस सर ब्लेसिंग से सर आपके सर. थैंक यू. बिल्कुल. थैंक यू एक क्वेरी थी फॉर सर योर मेरी, आपको थैंक यू फॉर शेयरिंग क्वेरी योर पूछ थॉट्स. सकता हूँ क्या?
नहीं, वो सेशन के बाद में हम डिस्कस करेंगे 10:30। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू प्रशांत। नेक्स्ट, अरे श्रवण आ जाओ, विशेष भी रेडी थे। सर कैन आई रिजाइन? यस आदित्य, यू कैन रिजाइन फ्रॉम योर करंट जॉब, नो इशू। हाँ, थंबनेल शेयर कर दिया ग्रुप में। श्रवण आइए, विशेष आइए, अमन आइए, जो है सामने आ जाइए, डिस्कस करते हैं। नितेश, विशेष अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो सर, विशेष के बाद अमन के साथ जाएंगे, विशेष के बाद अमन के साथ जाएंगे। आप चारों स्क्रीन पे आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नितेश भी आना चाहते हैं तो आ जाइए, पहले विशेष से बात करेंगे। पुष्पेंद्र, चारों रहिए, चारों स्क्रीन पे रहेंगे तो अच्छा दिखता है, 3 रहेंगे तो दिक्कत होता है। ठीक है, विल फ्रीज द स्क्रीन हियर। वेरी गुड। नहीं, बहुत लोग हो गए। नितेश आप ऑफ कर लीजिए वीडियो, नितेश ऑफ कर लीजिए, 4 से ज्यादा हो जाता है, स्क्रीन छोटा हो जाता है। सर गुड इवनिंग सर। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ सर। आप रिजल्ट तो डिफरेंट चीज है, बट जो आप नॉलेज देते हैं सर, वो बैंकिंग में काफी हेल्पफुल हुआ। करंटली मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में काम करता हूँ सर, एज आई एम ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस सीनियर मैनेजर एमएसएमई लोन। ग्रेट। तो आपके सर वीडियोस काफी 1 साल से मैं देखता रहता था सर, कि काफी फॉलो किया सर आपको, कि आपने जो आरबीआई सर्कुलर का जो आदत है सर, आपसे ही आया, स्टार्ट हुआ मेरा, कि जो कि एप्लीकेबल होता था। कभी मीटिंग में जाते थे, पहले मैं एचडीएफसी और आईसीआईसी में था, वहां पे हमें हमारा पूरा फोकस सेल्स में था, कि बस बिजनेस लेते जाओ। बट यहाँ पे सर जब से आपको फॉलो किया, तब से एक टर्निंग पॉइंट आया सर, कि आई शुड ट्राई फॉर पीएसयू बैंक्स आल्सो। तो वहां से सीखते सीखते सर काफी सारी चीजें सीखते थे सर। बैंक ऑफ बड़ौदा के कॉन्ट्रेक्चुअल एमएसएमई का जो वैकेंसी आया था सर, तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सर वहाँ क्वालिफाई हुआ सर। एसबीआई सीबीओ भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सर क्वालिफाई हुआ हूँ मैं। और इंटरव्यू में सर आउट ऑफ 50 सर मेरा मार्क्स 44 था इंटरव्यू में। और जो जो आपने गाइड किया था, सबसे पहले एक ड्रेसिंग सेंस आपने बोला था सर, कोट पहन के मत जाओ, थोड़ा सा प्रॉपर जाओ। तो वो सब चीजें काफी एक तो कॉन्फिडेंस दिया। काफी सारे वहाँ बच्चे आए थे, कोट पहन के आए थे, बहुत सारी चीजें पहन के आए थे। तो वहाँ मुझे कम से कम जो सर ने गाइड किया है, वैसे वैसे हम लोगों ने फॉलो किया उसको। और थर्ड सर, जो बैंकिंग नॉलेज जो आपने दिया है सर, वो सिलेक्शन हो गया सीबीओ, वो तो एक उसका रिजल्ट है। बट जो डेली जो हमारा जो बैंकिंग का जो रूटीन जिसे आप बोल सकते हैं, उसमें काफी हेल्पफुल है सर। और मैंने आपका कोई सर, आपने काफी आपके जो पेड सर्विसेज है सर, वो मैं लिया नहीं सर। मैं सोचा कि मैं एक बार ट्राई करता हूँ सर, की वीडियोस ही काफी है, तो वो काफी हेल्पफुल हुआ सर मुझे। वेरी गुड, यही मेरा सर एक्सपीरियंस। और थैंक यू सर, वेरी बहुत गुड बड़ा विशेष। मौका मिला मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन के लिए सर। Thank you, Vishesh. Thank you, Vishesh. Thank you for your kind words. I hope all of my students, because knowledgeist में जो भी CBO में क्रैक हुए ना, either they are our paid users, they are not paid users, you cannot say enrolled students, or they are my subscribers following me diligently from last 2 to 3 years or 1 year. 3 years तो नहीं है, 3 years का चैनल का उम्र भी नहीं है। चैनल is there for 2.5 years from the first CBO batch itself. That's why CBO is always close to my heart. SBI CBO students are everybody is, जहाँ पे भी सिलेक्शन होता है, and he said, someone was telling just before you कि मैं पर्सनली स्टूडेंट्स का क्वेरी देखता हूँ। आजकल तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है पर्सनली देखना, टीम देखता है, व्हाट्सएप में देख भी नहीं पाता, बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं। बट आई स्टिल बिलीव दैट इफ देयर विल नॉट बी ए पर्सनल टच विथ माय स्टूडेंट्स, देयर विल बी समथिंग मिसिंग। नहीं तो मतलब ये टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है। अगर हम लार्ज स्केल में नॉलेजिस्ट को बढ़ा दें, ये टच नहीं आएगा। आप लोगों के देखिए बड़े प्लेटफॉर्म में इस तरह से बातें नहीं होता है। Nobody cares about their students, but I still care and I love to interact with so many people. And this is the only motive and only work I have in my hand right now. ठीक है, बैंकिंग तो बहुत बोरिंग है, मगर ये सब this gives me immense pleasure. Thank you, Vishesh, for your kind words. Time constraint है. Okay, thank you. Can you clarify just one doubt? If anyone candidate is selected, yes, both, Tell me. if one candidate is selected in both CBO and BOM, then what should be the priority and preference? मैं तो बॉम रेकमेंड करूंगा। मैं होता तो बॉम में जाता, क्योंकि स्केल 2 है, मुझे स्केल से मतलब होता है। ब्रांड तो आते जाते रहेंगे, ब्रांड बड़ा है तो काम भी बड़ा होगा। मेरे पास ऑप्शन होता तो मैं बॉम में जाता।
Sir, actually, there is news that BOM can privatize, so that may be risky. नहीं, बॉम्ब प्राइवेटाइज होगा तो आप स्विच भी कर सकते हैं। बॉम्ब प्राइवेटाइज होगा तो कल्चर चेंज नहीं होगा ना। मैं होता तो जाता, मगर कुछ लोगों को ब्रांड्स प्यारे हैं, प्राइवेटाइजेशन से डर लगता है, तो बॉम्ब को प्राइवेटाइज होना में 5 साल है। ठीक है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आपके प्रोफाइल, आपके रिक्वायरमेंट्स को देखकर डिसीजन होता है। मेरा ये थॉट प्रोसेस था, क्योंकि मैं स्केल 1 में काम करना मुश्किल है, मतलब मेरे लिए मुश्किल होगा। मैं स्केल 2 प्रेफर करूंगा। स्केल 2 से स्केल 3 कहीं मिलेगा, स्केल 3 आरआरबी मिलेगा तो स्केल 3 आरआरबी को मैं प्रेफर करूंगा। ठीक है, स्केल 4 इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मिलेगा तो मैं उसको प्रेफर करूंगा। अलग अलग है, पोजीशंस कभी कभी मैटर करते हैं। आपको क्विक सक्सेशन में बहुत ज्यादा ऊपर जाना है तो आप स्केल देखेंगे, थोड़ी आप ब्रांड देखेंगे। Right. आप सीबीओ में जब नहीं जाएंगे तो स्केल 3 में, अगर स्केल 2 में जा रहे हैं यहाँ पे तो बाकी कभी स्केल 3 में स्विच कर सकते हैं। ठीक है, स्केल 1 से स्केल 3 जाना मुश्किल है। अमन, प्लीज योर थॉट्स। अमन के बाद पुष्पेंद्र। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर, आई एम very thankful to you sir, because before this sir I have already faced many failures in interviews sir. You already know what I have failed. yes सर, और एक्चुअली क्या है, जब ना मैं एक्चुअली क्या प्रेजेंटली अभी मैं एक्सिस बैंक में करंटली हूँ सर। सो पहले ना मेरे को बैंकिंग का उतना कुछ वो रहता नहीं था कि बैंक में एक्चुअली में मुझे करना क्या है। बस मैं ऐसा अपना जॉब आता था, जाता था, अपना जॉब काम करता था। बट आपके साथ सर जुड़ने के बाद में फिर मेरे को ये पता चला कि एक्चुअल में बैंकिंग क्या है सर। जो मैं प्रैक्टिकली कर रहा था, साथ साथ में उस चीज के बारे में मेरे को ना थोड़ा सा लगने लगा कि भाई हम जो काम कर रहे हैं वो काम कितना अच्छा भी कर सकते हैं हम लोग। उस चीज का नॉलेज भी गेन किया और फिर इस सब चीज से अच्छा लगता गया सर। तो वो सब चीज के लिए फिर ना मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया कि अब नहीं यार, अब प्राइवेट बैंक में नहीं, पीएसयू में ट्राई करना है। सो इसके लिए सर आपसे जुड़ा मैं 2 साल हो गया सर मुझे नॉलेज से जुड़े। इस बीच में मैं सर ऑलरेडी 4 पीएसयू बैंक का इंटरव्यू दे चुका था। रिटर्न तो मैं क्लियर कर ले रहा था क्योंकि आपके कंटेंट्स वगैरह सर सारे वो नेक्स्ट लेवल है, उसका कोई तोड़ नहीं है ऐसा। तो मैं वो तो क्लियर कर ले रहा था, बट इंटरव्यू में कहीं जाके मैं अपनी उसके गलतियों के कारण में सेलेक्ट नहीं हो पा रहा था। नहीं वो तो बात सही है, पहले बात कर। सो बट वो वीडियो में आफ्टर ऑल सर हार्ड वर्क पेज ऑफ, जैसे बोलते हैं ना कि आप इसमें इस हार्ड वर्क में सर आपका और नॉलेजेस का बहुत बड़ा रोल है सर। थैंक यू अमन, योर काइंड वर्ड्स। तो आपने, मुझे भी पता है, आपने मुझे मैसेजेस भी किए थे और बात भी हुआ है हमारा। तो yes, sir. यू हैव फेल्ड मेनी टाइम्स, बट यस सर, हौसला आपने जारी रखा। इसके सर मैं फर्स्ट वाला जो सीबीओ बैच था, फर्स्ट वाले में, उसमें भी मैं इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ था। फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्केल 2 के इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा स्केल 3 के इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ, बट फाइनली मैं यहाँ सक्सीड हो ही गया सर। If you are not big enough to lose, then you are not big enough to win. You have proved it. यस सर। ठीक है, हारने के बाद भी आपने हौसला नहीं छोड़ा, तभी आपने अपना सीट बुक कर लिया था। यस सर। Sooner or later only they win, those who think they can. बहुत सारे मोटिवेशंस आपके लिए, मतलब कोटेशंस आपके लिए लागू होते हैं। मन में ये था सर कि ठीक है आज नहीं हो रहा है, कल करेंगे, ठीक है कल गिरेंगे, फिर से उठेंगे, फिर दौड़ेंगे, फिर भागेंगे, लेकिन एक दिन दौड़ना है, उठना है, उड़ना भी है। तो बस इसी चीज को सर मन में रखा था और इस सब में आपने और नॉलेजेस ने बहुत हेल्प की सर। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। यही मैं सुनना चाहता था। मेरे नेक्स्ट जो आ रहे हैं स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग प्रिपेयर करेंगे आगे जाके, तो उनको भी ये एक अच्छा सा संदेश होगा। इतना सारा फेल्योर्स के बाद भी आपने मोमेंटम जारी रखा। यस सर, वेरी गुड अमन, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इट्स सो नाइस दैट यू शेयर। आप लोगों को सबको भी शेयर करना चाहिए अपने जो सक्सेस के जर्नी है। बहुत सारे लोग हैं, अभी तक मैंने कहा 20-25 लोगों का ही इंटरव्यू किया होगा, अभी 400-500 लोग बाकी हैं। सबको भी अपना शेयर करना चाहिए ताकि नेक्स्ट में जो आ रहे हैं वो मिसगाइडेड ना हो। ठीक है, यस सर, थैंक यू सो मच सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू अमन, थैंक यू। समय कम है आज, बाकी कभी बात करते हैं। पुष्पेंद्र, थैंक यू अमन। पुष्पेंद्र प्लीज। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ पुष्पेंद्र बोलिए। पुष्पेंद्र, आपका बहुत फोन आता था। एक्चुअली सर इंटरव्यू के पहले मैं भी एकलव्य था आपका। मैं सब मतलब एनरोल स्टूडेंट नहीं था सर। तो सबसे पहले ना 3-4 चैनल्स मैंने मतलब देखना स्टार्ट किए थे। तो सबसे एग्जैक्ट और सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन जो मिली ना, सबसे मुझे आपके चैनल से मिली सर। फिर धीरे धीरे करके मतलब मैं सिर्फ आपका ही चैनल सर, जो यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं वो देखता गया मैं सर, और मैं और कहीं से नहीं पढ़ा सर। तो मतलब बहुत से क्वेश्चंस ऐसे थे, मतलब
ऑलमोस्ट 40 to 50% क्वेश्चंस ऐसे थे जो यूट्यूब से ही आए थे सर, डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे यूट्यूब से। एंड आफ्टर दैट सर इंटरव्यू के टाइम पे मैं एनरोल्ड हुआ सर आपका, तो इंटरव्यू में मॉक इंटरव्यूज दिए सर, आपने अप्रिशिएट भी किया था एक बार, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया कि हाँ चलिए ठीक है हो जाएगा। एंड इंटरव्यू में आई गॉट 45 सर आउट ऑफ 50, और फिर क्या सर मतलब एक कॉन्फिडेंस मिला सर करने का, फर्स्ट टाइम ही अटेम्प्ट था, फर्स्ट टाइम ही हो गया सर मेरा। अरे ग्रेट, कांग्रेचुलेशन, फर्स्ट टाइम में आपने मतलब पूरा निशाना साधा, और वो भी इंडिया के नंबर 1 बैंक में। यस सर, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स, और आगे ऐसे ही तरक्की करते रहें। समय कम है आज, मगर बाकी आगे जाके भी बात करेंगे जी। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। और इस बार तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे यूट्यूब से आए थे। उसके बाद तुरंत बाद जो BOM CBI का बैच हुआ ना, हम इसी के चलते यूट्यूब में क्लास कम कर दिया था, पूरा कम कर दिया था। मतलब मैंने आपको कितना परेशान किया है सर आपको, वो क्लासेस के बीच में सर CBO का रिजल्ट कब आएगा, CBO का रिजल्ट कब आएगा, कितना परेशान किया सर मैंने आपको। नहीं, वो जो गैप हुआ ना बॉम्ब और CBO के बीच में, जो गैप हुआ उसके वजह से हमारे बॉम्ब वाले क्वालिफाई कर लिए। यस सर, ठीक है, तो थैंक यू पुष्पेंद्र फॉर योर काइंड वर्ड्स। थैंक यू सो मच सर, नाइस टू सी यू सक्सीड इन योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू। रोहित आइए। ओके, थैंक यू। रोहित, नितेश, श्रवण आइए। श्रवण बहुत देर से वेट कर रहे हैं। अनम्यूट रोहित, उसके बाद। गुड इवनिंग सर। हाँ, श्रवण, योर थॉट्स। रोहित आप इसके बाद आएंगे। रोहित आप इसके बाद आएंगे। मैं पिछले 3-4 साल से जुड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल। एंड आपके मतलब मार्गदर्शन में मैंने स्केल 2 निकाला, फिर दूसरी बार स्केल 2 इस बार जम्मू कश्मीर मिला था, ज्वाइन नहीं किया, फिर देन CBO तीसरी बार दिया है। अच्छा, मतलब ये हैट्रिक है आपका, ये हैट्रिक है। यस। वेरी गुड। आप अभी कहाँ पे? गाइडेंस है सर आपके यूट्यूब चैनल से। अभी सर मैं अभी तो मैनेजर हूँ प्रथमा UP ग्रामीण बैंक एज स्केल 2। अच्छा, वेरी गुड। सो पूरा नंबर 1 बैंक में डायरेक्टली ज्वाइन। आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल, आपका आवाज क्रिस्टल क्लियर आ रहा है, कोई इशू नहीं है। वेरी गुड। सो आपका इससे पहले कितने साल का एक्सपीरियंस था? मतलब 3 साल, तो 3 एग्जाम आपने क्रैक किया, उसके पहले का एक्सपीरियंस क्या था? 1 साल से ग्रामीण बैंक में 5 साल पूरे होने वाले हैं, और 6 साल और हो सकता है 5 इयर्स ग्रामीण बैंक मिल जाए। अच्छा, ठीक है, आप जारी रखिए, आगे बहुत दूर जाना है। अगर आप क्रैक कर रहे हैं इसी तरह से, आप जो भी लेटरल एंट्री देंगे आप क्रैक करेंगे। ठीक है, 5 साल में आजकल स्केल 3 तो हो जा रहा है, 7 साल में स्केल 4 भी हो रहे हैं लोग। ठीक है, CBI का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 7 साल में स्केल 4। सो डेफिनेटली कीप अप दिस मोमेंटम, नाइस टू सी यू। ठीक है, आप बहुत सारा एक्टिव रहते हैं हमारे क्लासेस में, पता है मुझे। ठीक है, और यूट्यूब के जो सेशंस में भी आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। थैंक यू। डू शेयर दिस चैनल विथ एवरी वन ऑफ योर फ्रेंड्स। आपके सक्सेस स्टोरी काफी इंस्पायरिंग है, 3 in a row। Congratulations. Thank you. Next, रोहित प्लीज। सॉरी, नितेश आइए। नितेश, रोहित आप थोड़ा सा और वेट करिए। नितेश बहुत देर से वेट कर रहे हैं। नितेश बहुत देर से वेट कर रहे हैं, उसके बाद रोहित। नितेश प्लीज, आर यू देयर? Yes, sir. Yes. How are you? Good, sir. Thank you very much for your guidance, sir. पिछले साल मैंने जो है बिना मतलब पढ़े ही एग्जाम दिया था CBO का, और नॉलेज लिस्ट के बारे में मुझे पता भी नहीं था। तो एक दोस्त ने इस बार बताया तो मैंने इनरोल किया, और सर बैंक ऑफ महाराष्ट्र और CBO दोनों क्वालिफाई कर गया हूँ। वेरी गुड। साथ ही साथ बैंकिंग में भी बहुत नॉलेज मेरा इनरिच हुआ है, काम करने में बहुत हेल्प हो रहा है। KYC, RBI सर्कुलर, ये सब अभी हम लोगों ने देखा नहीं था। RBI सर्कुलर के बारे में पढ़ते नहीं थे, आपके वीडियो के माध्यम से ही उससे जुड़े। तो सर बैंकिंग नॉलेज भी इनरिच हो रहा है आपके साथ जुड़ने के साथ। और CBO के बाद सर आपने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के समय YouTube पे वीडियो डालना बंद कर दिया था। हाँ, बंद कर दिया था। तो सर बंद कर दिया था क्योंकि फ्री में बहुत सारा ज्ञान बंट रहा था, और फ्री के ज्ञान का वैल्यू नहीं होता है। देखिए 2-3 लोग ही आके, अभी देखिए 2 लोग थे हमारे जिनको लगा कि नहीं मतलब गुरु का आदर करना चाहिए, तो वो आके अपना थॉट शेयर किए। ठीक है, बाकी लोग भूल जाते हैं, जिनको फ्री का मिलता है ना वो कदर नहीं करते, दे नॉट वैल्यू। नहीं हम भी है सर, एकलव्य है सर, प्रशांत। नहीं बिल्कुल नहीं, आप हैं बिल्कुल हैं, मगर तो सर फिर मैंने CBO का ही क्लासेस देख के फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र दिया। बिल्कुल।
और सर मेंस में अच्छे मार्क्स आए, 82 मार्क्स आए हैं सर, और अब इंटरव्यू 16 को है। हाँ, बॉम्ब का। वेरी गुड। आपका देखिए, आपका कॉन्फिडेंस तो बहुत हाई है, तो ये आपका जो इंटरव्यू होगा ना उसमें रिफ्लेक्ट करेगा। इसीलिए मैं इंटरव्यू के टाइम आपके कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की कोशिश बहुत ज्यादा करता हूँ। ठीक है? हाँ सर, और इंटरव्यू का भी वो मैंने पूरा देखा था और बहुत बढ़िया रहा सर। अब आगे जो भी लेटरल एंट्री के लिए जाना चाहेंगे उनको मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ही सजेस्ट करूंगा कि नॉलेज से जुड़े और कहीं जुड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आपका बहुत बहुत मतलब कंग्रेचुलेशंस। नंबर 1 बैंक में आप हैं। बॉम्ब में इच्छा होगा तो जा सकते हैं, इच्छा नहीं होगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, आपका सर सहयोग है इसमें। नहीं, बिल्कुल मिलेंगे। आप सब लोग पोस्टेड रहेंगे। और ये मेरा 3rd राउंड ऑफ सीबीओ रिजल्ट्स है, और अभी तक मुझे लगता है कि पहले बैच में 2 से 2,500 लोग, ऑलमोस्ट 2,000 लोग, क्योंकि तभी पूरा का पूरा फ्री था, 999 कोर्स भी था या फिर फ्री था। तो उस बैच में जितने भी लोग सिलेक्टेड थे ऑलमोस्ट सारे के सारे नॉलेजिस्ट के स्टूडेंट्स थे। तो अभी एसबीआई के हर एक कोने में हमारे स्टूडेंट है। उसके बाद लास्ट ईयर वही 400 to 500, और इस बार तो मतलब सारे ही मान लीजिए, क्योंकि जिस तरह से हमें रेस्पॉन्स मिल रहा है यूट्यूब वाले व्यूअर से, सब्सक्राइबर से, तो मुझे तो ऑलमोस्ट लगता है कि 100% हमारा ही स्टूडेंट्स हैं सीबीओ में। तो कहीं भी हाँ सर, वो इंटरव्यू के समय जब देखते थे 90-100 लोग रहते थे, लेकिन अब जब सीबीओ का रिजल्ट आया तो 200 से ऊपर लोग जुड़े हुए हैं उसमें। बिल्कुल सक्सेस बैच में। तो थैंक यू नितेश। मिलते हैं, थैंक यू सर, किसी ब्रांच में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू। जी सर, बिल्कुल। वेलकम। थैंक यू नितेश। रोहित, प्लीज कम फॉरवर्ड। हाय सर। यस रोहित, प्लीज आपके कुछ वैल्यूएबल वर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर। Yeah, sir. Actually, sir, with knowledgeist, I am since 2 years, and under your guidance, I have cracked Bank of Maharashtra Scale 2 and CBO also 2 times. Great. And that level of hard work I have done, but that the way, the guidance from you, every time I called you personally, and you suggested me, Roy, do this, like, and you always saw me the correct way. That's why this time also I have cracked CBO. And thanks a lot, sir, to especially to knowledgeist and the whole team. Thank you Rohit for your kind words. और आपने बोला कि every time you show me the right way, मगर मेरा तो काम यही है ना, मैं इसमें भरोसा रखता हूँ कि मैं अगर किसी को जिताऊंगा तो eventually I will win. And I always believe in चाणक्य, king maker is always greater than a king. तो मुझे उससे ज्यादा कोई प्राइड नहीं है कि मैं स्टूडेंट्स बना रहा हूँ अप टू स्केल 3, स्केल 4 लेवल तक का स्टूडेंट्स बना रहा हूँ लैटरल एंट्री में, और प्रमोशन एग्जाम में अप टू स्केल 6 तक लोगों को मैं गाइड कर पा रहा हूँ। सो दैट्स ब्यूटीफुल जर्नी। अगर लोगों को रास्ता दिखाने से मुझे अपना रास्ता मिल रहा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ। Actually, third time I have cracked CBO under your guidance. Bank of Maharashtra also, RRB Scale 2 also, and because of personal reason, though I have not joined there, but this time I finally cracked for Odisha because I always want to be got posted in Odisha. Home posting. And last time also, and you only told me, sir, go ahead, Rohit. Whatever will happen, we'll see. Just go ahead. And finally, I gone and attended the interview and finally selected, sir. Thank you, Rohit. Thank you. That's so kind of you. Thank you. Okay, so today there is a very time constraint. So many people are there in the fray, but thank you for making me proud, making your family proud, and making the entire alumni of Knowledgeist proud. Lastly, Jai Jagannath, sir. Jai Jagannath. Thank you, Rohit, for your kind words. Thank you. Next, Mohan, please. Mohan, come forward. Anyone else? और कोई आना चाहते हैं? कौशिक बीच में आना चाहते थे। मोहन, आपके गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। हाउ आर यू? Fine sir. Thank you very much, sir. Actually, I've been preparing for this banking sector from past 9 years, sir. 2014 onwards, I saw so many failures, sir. Literally, I wrote 100+ exams in all competition exams, not all banks. I went to so much depression, sir, but I don't lose hope on me. But every time I used to say, this is not today, tomorrow is mine, definitely. So I used to say every time like that only. But so that actually then I transferred to, so I thought that why should I take 2 years of experience in banking sector, then I go to scale 2 officer or
scale down more. So there is opportunity now. Then I joined in Axis Bank, sir. After 2 years, I got opportunity. I thought this is right time to prepare again to succeed my goal. Then I started, sir. After I went to Scale 2 officer Gramina Banks, IBS Scale 2 officer also. Last 2 years I went, sir, but unfortunately I not cleared in final interview. I went to what I sit down and writing what my mistakes was going on. In suddenly in YouTube your videos are gone, sir. By your video seeing, I got some motivation, sir. Then immediately I thought that why should I try this institute? Then I paid for bomb panel, sir, bomb examination, but I didn't paid for SBI. But while preparing for bomb, I selected for bomb interview also. 14th I have, sir. But before that, while going to SBI interview, that material you provided before previous year interview questions and materials, whatever for core banking, financial banking, what you provided, really helpful me, sir. So that first time I went to interview with confidence, sir. Without hesitate, whatever they asked, 15 questions they asked, sir. Every question I answered it. But finally, when I see my result, out of 50, I got 44, sir. This is because of you, your material only, sir. I got without hesitation also, I attended interview. Now bomb interview also 14th is there. I'm very thankful and helpful to, sir. This is my 9 years of goal. Because you only I succeed this. Hats up to you. Hats up to you. No, hats up to you. Thank you. 9 years, hundreds of exams, and you were still struggling, still preparing for the exams with similar spirit, similar enthusiasm like all other candidates. That's hats up to you, and you choose the right path. And there is no more pleasure than this could be achieved in my life. Okay, मैंने जिंदगी में अगर कुछ सही किया है तो नॉलेजिस्ट को बनाकर ही किया है. मतलब इससे अच्छा खुशी और किसी को नहीं मिल सकता. मेरा खुद का सक्सेस स्टोरी उतना मायने नहीं रखता. That is not that important like yours. How you are sharing, how it was, how disappointing this could be, failing one after another exam. I can understand. I really can understand. So thank you. Thank you for sharing your thoughts so clearly without any hesitation. That also requires God's saying this in front of everyone. Thank you, Mohan. You deserved the success. When you believed that you will be succeeded one day, it is the day you have booked your slot. It took time to grab it, but the very moment you decided to continue even after your failure is that day you succeeded. But the public announcement took place today. ठीक है, थोड़ा public announcement के लिए वक्त लगा, but you were a winner. ठीक है, thank you, Mohan. It's sir, very I have nice one small doubt, sir. Don't mind. Yeah, go ahead. Sir, before what it called, before result only, I resigned from HDFC, sir. No issue. I resigned on 17th February. But I done interview on 13th March. I got offer in S Bank, sir, actually. Okay. So due to this result only, I postponed that, sir. I told them I joined 20 like that. But they forced me to join, sir, literally. If you not join, we will not take like that. They blackmail me. And I joined on 6th, sir. But unfortunately, 8th result came. SBI result 8th came. 2 days only I worked, sir. Then I thought I want to. You can resign. You can resign immediately. No issue. There is no harm in that. You can resign or you abscond. No issue. I only abscond only, sir. Only I 2 days and I worked. Then I abscond and came to home, sir, to share my 9 years of pain, sir, with my parents. But they are blackmailing me, sir. They cannot do anything. They cannot do anything. Legally, they will send a mail to SBI like that. They're telling, sir. No, is it possible, sir? Nothing will happen. Nothing will happen because you give them a notice that you cannot, no longer you can work. This is a public sector bank job, not like private bank, and literally you have so many rights. Okay, if they have seen the courts, they are threatening you in legal ways. You have also other options with you. You have so many good legal options. Sir, actually, I will guide you. My rights. Actually. I will guide you. I have fought so many cases against these banks, private sector, public sector, and every time they are in back foot. Okay. Sir, so one more thing, sir. I have intro bomb 14th, sir.
but I'm interested in SBA early. From past 9 years, I'm a passion to join SBA. No worries. You go and I attend to BOM or not? You attend BOM. It will show you. It will give you experience. You take a revenge. 9 years you prepared. Take 3-4 selections at least. Okay. Take some more selections. My best wishes. Thank you. Okay. Thank you. Thank you, Mohan. There is a time constraint. We'll meet again. Thank you. Kaushik, please. हाँ कौशिक, बहुत लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हैं. अनम्यूट करिए and I want to hear from you. You got selected for Kolkata region, right? No, sir, northeast region. अच्छा, northeast. Okay. So your take, your struggle, your journey. Sir, first of all तो thank you, sir. अभी मेरा सिचुएशन ऐसा था कि मैं जितना इंटरव्यू सर अटेंड किया था तो मेरा जॉब प्रोफाइल के लिए मेरा सर टेंशन था थोड़ा. तो मैं जितना इंटरव्यू हर रोज आता हूँ, मैं शाम को आता हूँ इंटरव्यू अटेंड करने के लिए कि मेरा जॉब प्रोफाइल के लिए कि कोई सिमिलर कोई प्रोफाइल का कोई कैंडिडेट होगा कि नहीं होगा. लेकिन हर दिन आता हूँ, एक भी बंदा मेरे को नहीं मिलता है मेरा जॉब प्रोफाइल का. तो मेरे को सर टेंस था थोड़ा इसके रिगार्डिंग. मुझे वो दिन भी याद है कि आपने रात को 11 बजे आपने मुझे बोला था कि आपका मेरा जो इंट्रोडक्शन को लेके जो एक वीडियो क्लिप आपने सेंड करने के लिए बोला था, मैं आपको व्हाट्सएप में सेंड किया था और आपने उसके ऊपर फीडबैक दिया था सर. तो उसके बाद आपने मुझे, मैं आपको जब पर्सनली पूछा था तो आपने मुझे पूछा था कि डोंट वरी, यस बैंक का आपका जो प्रोफाइल से यस बैंक का बंदा भी सिलेक्ट हुआ है ऑलरेडी प्रीवियस. तो इससे मुझे थोड़ा ज्यादा बहुत मोटिवेशन मिला था. तो उसमें जाके फिर भी ना सर, मैं इंटरव्यू देने के बाद भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि हार्डली मेरे को 20-25 नंबर मिल जाए आउट ऑफ 50. आई एम हैप्पी फॉर दैट वन. बट सर आफ्टर थोड़ा इंटरव्यू में थोड़ा जब क्वेश्चंस रिलेटेड टू माय जॉब प्रोफाइल के लिए ही पूछा और बाकी जो मेरा ब्रांच बैंकिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो जब कोई भी क्वेश्चन ब्रांच बैंकिंग से मुझे आया नहीं, मतलब ओनली मेरा जॉब प्रोफाइल के रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा, नॉर्मल जनरल बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन, तो मेरे को थोड़ा मोटिवेशन, मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला. उसके बाद मेरे को लगा कि मेरा आ जाएगा, मतलब नियरली अबाउट द 52 नहीं आएगा, लेकिन यस डिसीजन मार्क तो मेरा तो आ ही जाएगा. उसका कॉन्फिडेंस था. तो उसके बाद एग्जाम इंटरव्यू देने के बाद भी आपको जाके डिस्कस हुआ था रात को, उस दिन मुझे याद है. लेकिन सर उसमें क्या है, वेट था, लेकिन आगे 8 तारीख को जब तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब यस, मतलब मेरा प्रोफाइल से भी मतलब सिलेक्ट हो सकता है. मतलब वहाँ पे कोई ब्रांच बैंकिंग वालों का जो एक मिथ चल रहा था कि ब्रांच बैंकिंग वालों का ही सिलेक्शन होगा तो बाकी लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा. तो आपने भी वहाँ पे इंटरव्यू सेशन में भी आपने बोला था कि उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, आपको प्रिपरेशन करते जाइए, कॉन्फिडेंस रखिए. तो सर अभी हो गया, तो थैंक यू सर फॉर दिस वन. थैंक यू कौशिक, आपने सही किया है. मतलब आप अगर इफ यू लूज फेथ ऑन मी, ऑन योरसेल्फ इन बिटवीन द प्रिपरेशन, इट कुड बी वेरी हैजर्डस. वही होता है जहाँ पे आपको, मैं देखिए, मैं तो आजकल बोलता हूँ कि थोड़ा सा मुझे कम फोन करिए, बट जो डायर नीड पे है उनको सही टाइम पे मोटिवेशन देना मेरा काम है. ठीक है, एक लाइन ऑफ मोटिवेशन कुड चेंज somebody's life, somebody's viewpoint, so I am there to help it out. और मैं एक्चुअली मैं बोल रहा था अभी क्योंकि ना जब सीबीओ का नोटिफिकेशन आया था तो मैं देखा नहीं था. तो मेरा एक कलीग था, तो उसने मुझे रेफर किया था कि अब एक बार नॉलेज बोल के एक चैनल है, आप एक बार देख लीजिए वहाँ पे. तो मैं उस दिन मैं ऑफिस में था, वो दिन याद है. तो मैं ऑफिस का आफ्टर लंच में तो नॉलेज का ही देखने लगा, मतलब उसका क्या क्या वीडियो है. तो शाम को आपको एक बार मैसेज किया था उसके रिगार्डिंग कैसे इसको ज्वाइन करवाना है. तो उसने, मेरा कलीग ने ज्वाइन करने के बाद ही मैंने उसके नेक्स्ट डे में आपका सब्सक्रिप्शन में ज्वाइन करवाया था. तो उसके दिन से लेके एग्जाम देकर हर दिन मतलब ऑफिस से आते हैं, फ्रेश होते हैं, नॉलेज ज्वाइन करते हैं, रात को 11-12 बजे तक. कभी कभार ऐसा भी हो जाता है नॉलेज का वीडियो कंप्लीट करने के टाइम पे रात को 1-1:30 बजे 1-2 बजे बज सकते हैं इसमें. तो फाइनली मतलब वो मतलब कॉन्फिडेंस भी बाद में थोड़ा लूज हो गया था बीच में, लेकिन बाद में आपका वीडियो भी था, उसमें वीडियो भी देखा, उसमें जो आपका पीडीएफ, ऑफिस में भी कभी कभार जब टाइम मिलते थे, आपका क्या वीडियो देख तो नहीं सकते, जो पीडीएफ है वो भी ओपन करके हम लोग देख लेते थे जब टाइम मिलते थे उसमें. तो वो थोड़ा बेनिफिट रहा वहाँ पे. तो थैंक यू फॉर दैट वन सर, एवरीथिंग. थैंक यू कौशिक फॉर योर काइंड वर्ड्स. तो मेरा भी एडवाइस यही था, कभी कभी ऑफिस आवर भी बर्बाद करना चाहिए. ऑफिस वाले, अब ये बैंक वाले आपके पर्सनल आवर्स बर्बाद करते हैं. तो नॉलेजिस्ट के स्टूडेंट्स का पूरा हक है और आप सबका हक है, आप ऑफिस आवर भी थोड़ा बहुत बर्बाद करें. ठीक है, मैं भी जब प्राइवेट परवंजन सर,
ये कौशिक मेरे ही बैच का है सर। ये अभी मैं देख रहा हूँ उसका फेस 45 बैच पे है। अच्छा हेलो अच्छा कौशिक, मुझे प्रसाद अभी देख रहा हूँ हम लोग। अरे मेरे को अच्छा पहचान रहा है, देखो। प्रशांत हाँ ओके ओके देखिए प्रशांत अभी मैंने देखा। देखिए गोल जी, जी। दुनिया गोल है सर, घूम फिर के देखिए बिल्कुल सब आप ही बिल्कुल के बिल्कुल, कोचिंग में है। सब यही है, अरे सब यही है यार नॉलेजिस्ट में। मैंने तो मैंने इंटरव्यू देखा था मॉक के टाइम में, फिर मैं देखा चलो इसका भी सिलेक्शन हो गया। चलिए थैंक यू सर, सारे दोस्त का सिलेक्शन करवा दिया आपने। वेरी गुड, प्रशांत कांग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू। वेरी Thank गुड, you, thank you, sir. थैंक यू सेम टू यू कौशिक। मिलके काम करिए, एसबीआई में मजा आएगा। ओके थैंक यू सर। श्योर सर। थैंक यू। वेरी गुड, आपका दोस्त भी यहीं मिल गया, और क्या चाहिए जिंदगी में, और क्या चाहिए। हाँ वही ना सर, इतना दुनिया गोल है, बताइए सर। वेरी गुड, आप ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहिए, यहीं पे स्टॉप होना नहीं है, ठीक है। आगे भी आपको Yes, sir. जल्दी जल्दी स्केल 2 स्केल 3 बनना है। एक बार लैटरल एंट्री का मजा चख लिया है तो व्हाई नॉट यू गो अहेड इन योर लाइफ जर्नी, ठीक है। डेफिनेटली आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन। हाँ मैं बोल रहा था कि ऑफिस आवर भी यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जब वो आपके प्राइवेट आवर्स, पर्सनल आवर्स यूज करवाते हैं, आपको काम करवाते हैं, तो ऑफिस आवर में ही पढ़िए। मैं तो सिविल सर्विसेज भी ऑफिस आवर में पढ़ के क्लियर किया था, और वो भी उस टाइम आई वाज इनटू ए प्राइवेट बैंक, बड़े प्राइवेट बैंक में था। तो ऐसा ही कुछ नहीं है, पूरा का पूरा यूटिलाइज करिए। मैं तो टाइम बहुत लेता हूँ, ऑफिस वाले हमारा टाइम वेस्ट करते हैं, मैं तो उनका पूरा का पूरा टाइम वेस्ट करवाता हूँ, बदला लेता हूँ, पोएटिक जस्टिस। और वैसे तो मेरे किस्से मशहूर हैं, जो लोग हैं प्राइवेट में, पब्लिक सेक्टर में अभी भी चल रहे हैं किस्से, तो पूरा बदला पूरा टॉप मैनेजमेंट के साथ सीधा भिड़ जाते हैं। देखते हैं क्या कोई क्या कर सकता है। चलिए एनीवे, थैंक यू फॉर कौशिक, प्रशांत, एवरीबॉडी। ओके एनीवन, यस, अभिमन्यु कुमार देव, कौशिक, थैंक यू। अभिमन्यु आइए, और कोई आना चाहते हैं? हेलो सर। यस अभिमन्यु, आपके कुछ लास्ट वर्ड्स। यस सर। मैंने 3-4 साल किया है बैंकिंग में काम, लेकिन कोरोना के बाद से मैं टास्क प्रोफाइल में था, तो काफी प्रॉब्लम हो रही थी हैंडल करने में, तो मैं स्विच करके आईटी में आ गया था। मैंने सोचा नहीं था दोबारा बैंकिंग में जाने का, लेकिन सीबीओ का आया जब नोटिफिकेशन में, मेरे साथ एक आईसीआईसी बैंक में बंदा था, उसका हुआ तो सिलेक्शन, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ट्राई करता हूँ। लास्ट ईयर भी दिया था मैंने बिना किसी कोचिंग के, आई क्लियर्ड बोथ रिटन एंड इंटरव्यू बट कुड नॉट मेक द फाइनल लिस्ट। तो इस साल मैंने डिसाइड किया, आपके वीडियोस तो मैंने लास्ट ईयर जब रिजल्ट आया था तब कई लोगों को शॉक लगा था कंप्यूटर एप्टीट्यूड में जो हुआ था, रीजनिंग पूछ ली थी सारी। तब आपने बोला था कि आपने शुरुआत से ही रीजनिंग की प्रिपरेशन कराई थी, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था नेक्स्ट ईयर के लिए आपको प्रेफर करूंगा मैं। इस ईयर मैंने ज्वाइन किया नॉलेजिस्ट, और रिटर्न में भी 27 एक्स्ट्रा मार्क्स थे मेरे कट ऑफ से, और इंटरव्यू में 41 थे आउट ऑफ 50। आई क्लियर्ड बोथ। अच्छा वेरी गुड। आप थैंक यू हाँ, आप वहां से बैंकिंग से पॉज लेके भी आपका सिलेक्शन हुआ, दैट्स ए ग्रेट न्यूज। बहुत सारे मेरे पास गैप वाले लोग आते हैं, वो घबरा जाते हैं। प्राइवेट में क्या होता है कि गैप वालों को प्रेफर नहीं करते, और मैं यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक में बोलता हूँ, जब आप प्रिपेयर करते हैं गैप वैप आप दिमाग से हटाइए, सवाल का जवाब दीजिए, मार्क सिक्योर करिए, अपने आप को जस्टिफाई करिए, यू आर इन, राइट। यस सर। कॉन्फिडेंस मैंने लूज नहीं किया था इंटरव्यू में, काफी उन्होंने मुझे थोड़ा सा इस बात के लिए पूछा भी था, लेकिन मैंने अनअपॉलोजेटिक जैसे आपने बोला था उस तरह मैंने बिल्कुल कॉन्फिडेंस होकर जवाब दिया था। वो काफी लास्ट पार्ट ऑफ इंटरव्यू था, उसमें तो काफी हंसी मजाक भी हुआ था थोड़ा बहुत, तो काफी खुश थे वो लोग, बोर्ड जो था। वही है, अपना अपना रास्ता है, क्या भला क्या बुरा है, एक गजल है, अपना अपना रास्ता है, क्या भला है क्या बुरा है। मतलब उनको लगता होगा आपने गलत किया, अगर आपको लग जाएगा कि आपने गलत किया तो दुनिया खत्म हो गया, ठीक है। मतलब आपको सही लगना चाहिए, बाकी सामने वाले को क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है वो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है। पहले आपने जो किया है लाइफ में, जो आपके साथ हुआ है, यू हैव टू टेक इट एज ए राइट डिसीजन इन योर लाइफ, ठीक है। डिसीजंस राइट और हाँ बिल्कुल। अभिमन्यु बोलिए। एक पॉइंट उन्होंने ये भी रेस किया था एक्सिस में, मैंने सिर्फ 7 महीने में ही छोड़ दिया था, क्योंकि जो बिजनेस था पूरी तरह बंद हो चुका था लॉकडाउन के टाइम पे, तो मैंने 2-3 महीने का गैप लेके फिर आई स्विच टू आईटी, तो उन्होंने उस पॉइंट को भी थोड़ा सा रेस किया था। उनसे भी मैंने बताया, अपना इशू बताया कि क्या चल रहा था वहां पे, और वहां पे भी मतलब ऐसा नहीं था कि जवाब देने में बिल्कुल भी हिचकिचाया। आई वाज टोटली कॉन्फिडेंट एंड आई आंसर्ड ऑल दोस क्वेश्चंस, सो द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ अस। वेरी गुड अभिमन्यु, वही होता है।
आप अपने डिसीजन के ऊपर कभी पछताना नहीं है, जो डिसीजन हो ले लिया है। नाउ यू हैव टू यूज योर टाइम टू प्रूव इट राइट। वेरी गुड अभिमन्यु, थैंक यू फॉर योर टाइम और कंग्रेचुलेशंस, गो अहेड और आगे ऐसे ही बढ़ते रहिए। डॉक्यूमेंट्स को लेकर मैं थोड़ी देर एक दो मेरे, हाँ पूछिए सवाल पूछिए, नो इशू पूछ लीजिए, बाकी लोगों का भी क्लियर हो जाएगा। सर मेरे 3 डॉक्यूमेंट का इशू है। एक तो ग्रेजुएशन मेरी क्वालिफाइंग डिग्री है, एमबीए की डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मेरे पास, अप्लाई किया हुआ है मैंने, तो उन्होंने बोला कि 3-4 दिन में और आ जाएगा, तो अगर वो नहीं आता है तो क्या होगा? फर्स्ट डिक्लेरेशन दीजिए, 3 महीने का आपके पास टाइम भी है, मतलब आप एक्सटेंड कर सकते हैं ज्वाइनिंग तब तक, ठीक है। और सेकंड पार्ट है कि मैंने 3 फॉर्मेट अभी तक कास्ट सर्टिफिकेट को दिए हैं, एससी कास्ट सर्टिफिकेट के। 2 तो उन्होंने बोला है कि प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, 2 प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट मैंने काफी ढूंढा, एसबीआई का कोई है नहीं, तो आरबीआई के प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में मैंने बनवा लिया है, लेकिन वो पेपर रिटर्न फॉर्मेट में है, तो वो चल जाएगा? हाँ, अगर वो उसको नहीं चलाएंगे तो बोलिएगा, आप अपना फॉर्मेट भेजिए, ठीक है। सीआरपीडी से नहीं तो एक बार मेल कर लीजिए सीआरपीडी को, बोलिए फॉर्मेट देने के लिए, ठीक है। नहीं दे पाते हैं तो आप किसी को दे सकते हैं, ठीक है। एक सर लास्ट चीज है, मेरा एक लोन चल रहा था एजुकेशन, जिसमें कोरोना के दौरान मेरी कुछ ईएमआई डिफॉल्ट हुई थी, जिनको मैंने क्लियर कर दिया, एनओसी भी ले लिया है, 31 जनवरी का है वो, तो लेटेस्ट लगाना पड़ेगा या वही वाला एनओसी मेरा चल जाएगा? वही एनओसी चल जाएगा, नहीं तो आप कोविड के वजह से हुआ है करके बीएम से कुछ लिखवा के भी ले सकते हैं। डिफॉल्ट वाज मेनली एनओसी एक्चुअली मैंने क्लियर कर दिया है, सब कुछ एनओसी भी ले लिया है, लेकिन 31 जनवरी का है। दे विल कंसीडर, कोरोना के वजह से जो डिफॉल्ट हुए हैं उनको दे विल रिकंसीडर, नो इश्यूज। ओके ठीक, ओके, थैंक यू। या थैंक यू। एनीवन एल्स वांट टू शेयर देयर थॉट्स? एनीवन एल्स? सर हाँ मीर। सर नमस्ते सर। सर मैं आपको साइलेंटली बहुत फॉलो करता हूँ। आप वीडियो में आइए, मजा लगेगा आपकी बात सुनने में, और आगे चल के एक स्पेसिफिक छोटा सा कंटेंट बनाएंगे। आप नाम मीर? हाँ यस, गो अहेड। सर मैं उड़ीसा से हूँ। बिल्कुल, ग्रेट। आपको साइलेंटली तो पूरा फॉलो करता हूँ सर, आपके सारे वीडियो देखता हूँ और आपको बहुत एडमायर करता हूँ, और जो आप बोलते हैं वो फॉलो करता हूँ। सर मेरा एक क्वेरी है सर, आपसे मैं गाइडेंस चाहता हूँ। अभी सर मेरे को मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 2018 से हूँ, और मैं अभी स्केल 2 बन गया हूँ और ब्रांच मैनेजर हूँ अभी, मेरे को 1 साल हो गया, और एसबीआई सीबीओ हो गया है मेरा इस बार, लेकिन मेरा होम स्टेट में हो गया है। थोड़ा मैं इस सोच में था कि मेरे को होम स्टेट मिल जाएगा तो मेरे लिए फायदा है, थोड़ा फैमिली के लिए टाइम देना, क्योंकि मेरे ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज स्केल 2 से स्केल 1 जाना रिकमेंडेड नहीं है। 12 साल रहेंगे अभी आप होम टाउन में, अपने फैमिली को टाइम दे पाएंगे, ठीक है। बच्चों का एजुकेशन में भी कोई इशू नहीं होगा। लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट मनी एंड पोजीशंस, ठीक है। तो कभी कभी आपको थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है। वैसे एसबीआई विल गिव यू वेरी अट्रैक्टिव ऑफर्स, और आप बाद में भी अगर आप फैमिली सेट है तो बाहर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। अगर बैंकिंग में आपको होम टाउन पोस्टिंग और लंबा समय रहने का मिलता है मौका, इट्स अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बैंकिंग में सबका लाइफ खराब है, ठीक है। बैंकिंग में सबका लाइफ खराब है, तो अगर मिल रहा है, और आप फैमिली लाइफ को, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। पैसा तो आता जाता रहेगा, पैसे का क्या है। यस सर, यस। जब पैसे की जरूरत नहीं होगी तब बहुत आएगा, जब जरूरत होगा थोड़ा कम आएगा, यही दुनिया का नियम है। तो आपने जरूरत कम कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा मतलब खर्चा कम कर लीजिए, इनकम ज्यादा लगने लगेगा। खर्चा बढ़ाएंगे, कितना भी इनकम करिए कम लगेगा। आप जाएंगे बाहर रहेंगे, फिर घर आएंगे फ्लाइट से, आपका जो देखिए डबल खर्चा होगा। आप छुट्टी के लिए मनाने के लिए एक बार बाहर जाएंगे, एक बार घर आएंगे, कभी कभी होम टाउन भी आना पड़ेगा ना आपको, तो आपका छुट्टी का टाइम भी बर्बाद होगा। अभी यहाँ से अगर आपको छुट्टी मिलता है तो आप सीधा कुल्लू मनाली जाएंगे, कभी कभी दुबई जाके घूम के आएंगे, ठीक है। तो एलटीसी तो मिलेगा 4 साल में एक बार, घूम के आइए बाहर, कोई इशू नहीं है, ठीक है। पोस्टिंग वगैरह कैसे मिलेगा, कुछ आइडिया है क्या सर आपको? जो स्टेट बैंक में भुवनेश्वर में पहली बार हो रहा है तो पता नहीं है, देखते हैं भुवनेश्वर में कहाँ पे दे रहा है, मगर बहुत जगहों पे दे सकता है, बहुत सारे अच्छे ब्रांचेस हैं। तो आपको किसी एक सिटी में ही देगा, नॉर्मली सीबीओ को छोटे जगहों पे पोस्टिंग नहीं करता है। में कुछ कंसीडर करेंगे क्या, अगर क्योंकि मेरा स्पाउस भी कंसीडर करेंगे, नो इशू। बिजनेस से मतलब है, कंसीडर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ, पीटी वाज वांटेड टू ज्वाइन, ठीक है।
आइए। हाँ सर, नमस्ते सर। हाँ, आपका पूरा नाम बताइए, पीटी से मुझे पता नहीं चल रहा है, प्रभंजन त्रिपाठी भी हो सकता है। सर नहीं सर, मैं प्रफुल्ल हूँ। हाँ प्रफुल्ल, बोलिए। हाँ सर, एक्चुअली मुझे ये पूछना था, अभी जस्ट मैंने दिसंबर महीने में मेरा होम लोन लिया हूँ मेरे एग्जिस्टिंग बैंक से। तो अभी सीबीओ में मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो एक्चुअली अमाउंट भी काफी बड़ी है, कोई इशू नहीं है, मोर देन 50 लाख। डिफॉल्ट नहीं है तो ना? सर मुझे ना डिफॉल्ट नहीं है, ओवरफ्लो में है सर। ठीक है, कोई इशू नहीं होगा। तो सर ऐसा तो कुछ रूल नहीं है ना कि वो लोन वगैरह क्लोज करके वगैरह कुछ ऐसा कुछ नहीं है, रूल वूल कुछ नहीं है। आप जाके वहां पे जाके उसको टॉप अप करवा लीजिए। अभी तो नहीं देगा, शायद 1 साल बाद या फिर कंफर्मेशन के बाद आपको स्टाफ लोन मिल जाएगा कंसेशनल रेट में 85 लाख 1 करोड़ का। तब तक ये नॉर्मल रेट में होगा ना? हाँ, तब तक नॉर्मल रेट। ठीक है, उसके बाद टॉप अप थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए सर एक बार पूछना था। अब एक सेकंड, बाकी जिन लोगों का रहा, आपका भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है सक्सेस स्टोरी शेयर करना अपना। तो नेक्स्ट कल शाम को, कल रात को लेट 10 बजे रखते हैं एक सेशन। सो बाकी जो डाउट्स हैं आप पूछिए। मैंने प्रॉमिस किया था 10:30 के बाद आपके क्वेरीज रिजॉल्व करूंगा। आई वुड लव टू डू दैट। बाकी लोग कल थोड़ा ज्वाइन करिएगा, बाकी हम सेशन करेंगे। ठीक है, सबका जैसे सक्सेस स्टोरी होना चाहिए नॉलेजिस्ट में, सबका होना चाहिए। चलिए, हाँ बोलिए। सर मैं कौशिक बोल रहा था। सर ये बोल रहा था कि जब हम लोग ने इंटरव्यू टाइम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था, उस टाइम में जॉब प्रोफाइल जो सर्टिफिकेट है ना, तो मैं ना अभी भी आईसीआईसीआई बैंक में जॉब कर रहा हूँ अभी। तो मैं ना बीएम से एक ना लेटर हेड पे लिख के मतलब वो सबमिट करवाया था, वो लोग ने वो चीज एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, तो अभी ना जब अभी फिर से डीवी होगा, वहां पे फिर से वो जॉब प्रोफाइल सर्टिफिकेट मांगेगा क्या? क्योंकि ना ये प्रोसेस थोड़ा लंबी है और जनरली अभी डीबी में वो वाला शो कर दीजिए, हो जाएगा। उसके बाद आप रिलीविंग अपना सब दे दीजिएगा। अभी से रिजाइन, जिनका सिविल सही है, जिनका सिविल सही है वो इमीडिएटली रिजाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ज्वाइनिंग पक्का मिलेगा। जिनका सिविल पूरा प्रवचन सर, यही जॉब प्रोफाइल रिलेटेड हमने जो है ना HRMS में दिया था, तो उसमें ना सिर्फ मेरा ना प्रोसेस एंड कंप्लायंस था, डेट ऑफ ज्वाइनिंग था, तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया। एक्चुअली मैं बैकएंड में हूँ ना, तो यहाँ लेटर हेड स्टैम्प इस सब कुछ नहीं रहता है। तो मेरा जो आपका ग्रेड क्या है? DM1 है। DM1 प्रोफाइल सही है। डाउट कहाँ पे है? जो थोड़ा सा मतलब असिस्टेंट मैनेजर वगैरह नहीं, जो देखिए जो एक्सिस वगैरह सीनियर ऑफिसर इस तरह का कैडर होता है ना, जो स्केल 1 लेवल का नहीं है, वो लोग आ रहे हैं ना, इसीलिए उनको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए ये किया गया है। ठीक है, तो सर वो डिक्लेरेशन मुझसे ले लिया कि तुम मुझे ना जॉब प्रोफाइल क्लियर दोगे कि तुम इस 2 साल से ऊपर इस ग्रेड पे हो। तो सर लेटर हेड तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा नहीं, और HR जो देता है वो रिजाइन के बाद देता है, प्रॉपर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अभी तो हम शो नहीं कर पाए, तो क्या अभी रिजाइन कर दीजिए। अभी रिजाइन कर दीजिए, जो है वो लेके जाइए। आप कौन से ग्रेड में ज्वाइन किए थे? DM1 में। DM1 में जब ज्वाइन किए थे उसका लेटर, और अभी जो DM1 में हो उसको लेके जाओ, और उसके बाद बोलो कि मैं अगर उसमें भी अगर रिजेक्ट कर देता है तो क्या? मेरा लास्ट ईयर किसी को रिजेक्ट किया है? रिजेक्ट करता है मेरे पास ही आता है। नहीं रिजेक्ट शो कर पाएंगे, पता नहीं है हमको। आप प्रूफ लेके जाइए, प्रूफ लेके जाइए। हम प्रूफ लेके जाएंगे, जैसे कि ज्वाइनिंग जो था मेरा OJT में जो मेल आया था हमको, उसमें डिप्टी मैनेजर प्रोसेस कंप्लायंस है, और उस रोल में हम 3 साल से हैं। तो आपके सैलरी स्लिप में भी होगा ना DM1 में उस दिन से, उस दिन का, उस टाइम का 3 महीने का सैलरी स्लिप, अभी का 3 महीने का सैलरी स्लिप ले लीजिए। हाँ, उसके बाद ये भी, उसके बाद फिर ये PO प्रोग्राम का जो मेरे पास रिजल्ट ये है, डॉक्यूमेंट है, तो उससे तो DM1 ही होता है। DM1 में कोई दिक्कत नहीं है। DM1 में कोई नॉन है कि PO प्रोग्राम जो ICICI का है वो DM1 ही है। ये सब चीज शो करेंगे। अगर फिर भी रिजेक्ट कर देता है तो सर नहीं करेगा। नहीं। हेलो आदित्य बोलिए। मैं एक्चुअली मैं भी ICICI बैंक में हूँ। जैसा इनका क्वेरी है ना, सेम मेरा भी उन्होंने क्वेरी रेज किया था। तो मैंने क्या किया, उन्होंने मेरे को गाइड किया कि आप जब ज्वाइन किए थे उस समय से 6 महीने के ले लो, क्योंकि 4 महीने हम लोग OJP पे रहते हैं सर। उसके बाद जो है हम लोग का DM1 दिखता है सर। तो आप टोटल 6-7 महीने का सैलरी स्लिप ले लो जब आप ज्वाइन किए थे, वो जस्टिफाई हो जाएगा। फॉर्म 16 ले लो, 16 फॉर्म 16 ले लो। में मेंशन है क्या डिप्टी मैनेजर उसमें? देखो उसमें आपको सारा वो 1 साल का आता है ना, बेसिकली एक फाइनेंशियल ईयर का आता है ना,
तो वहाँ आपका तो उसको प्लस में 2 आपका साल का सैलरी चाहिए। स्लिप 2 साल का निकल जाएगा ना, तो वहाँ से आपका 2 साल का आ जाएगा। आप एक बार HRMS में जाके देखोगे ना, जहाँ पे सैलरी डाउनलोड करते हो, वहाँ पे फॉर्म 16 का भी ऑप्शन है, वहाँ से आप डाउनलोड करके और यहाँ से आप 1 साल का ले लो, 1 साल का ले लो सैलरी स्लिप, क्या दिक्कत है? प्रिंट आउट ही तो लेना है ना। आप प्रेजेंट करोगे, मेरे उसको से 2 मांगा साल है, प्रूव करना है ना, उसको 2 साल से ये 2 साल का ले लो, होना चाहिए ना। 26 डॉक्यूमेंट होगा और कितना होगा 24 तो प्रिंट आउट होगा। आपके ऑफर लेटर में लिखा हुआ है कि आप 2 महीने 4 महीने तक OGP में रहोगे एज अ PO, उसके बाद आपका ग्रेड DM1 हो जाएगा। ऑफर लेटर क्लियरली मेंशन किया हुआ है, जो मेल आया है ना उसमें। तो आप आपके ऑफर में क्लियर मेंशन किया हुआ है चीजें। मैं भी ICICI बैंक में हूँ, तो आप ले जाओगे, आपका काम बन जाएगा। मैं भी लेके जाऊंगा क्योंकि मेरे से वो मांगा टेकिंग लिया है। क्योंकि सर हम लोग बैकएंड में है ना, तो लेटर हेड यहाँ पे है नहीं, और ये लोग लेटर ना की जरूरत नहीं है, वही जो बोला ना वही करिए, हो जाएगा, सबका सिलेक्शन अगर हुआ है। उसमें सर एक क्वेश्चन है, अगर उसमें रिजेक्ट करता है तो फिर से अंडरटेकिंग हमको देना होगा कि हम जब रिजाइन करेंगे तब हम लाके देंगे। हो जाएगा। ऐसा होता है ना सर? हाँ, रिजेक्ट तो नहीं करेगा ना? नहीं अभी से भी रिजाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, आने के बाद करिए। सर मेरा एक अभिमन्यु बोलो। कंफ्यूजन है सर कि मैं अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में सर 1 महीने का नोटिस है सर। तो SBI में जितना मैं जानता हूँ सर 2 डेट देता है, एक जो इमीडिएट 10 या 15 दिन का डेट होता है ज्वाइनिंग सर, एक 3 महीने बाद वाला देता है सर। मार्च 31 के पहले जो ज्वाइन कर पाएगा उसको बेनिफिट है, उसके बाद कभी भी ज्वाइन करो, कोई इशू नहीं है। मार्च 31 के से पहले ज्वाइन करते तो एक फाइनेंशियल ईयर आपका पूरा काउंट होता, तो उसके बाद कभी भी ज्वाइन करो, कोई सर जैसे कोई मेरा तो अभी कर नहीं पाएगा 31 मार्च से पहले। सर अगर मैं कल रिजाइन डालता हूँ सर, तो 13 अप्रैल को मेरा डेट आएगा सर, लास्ट डेट। 1 महीने का नोटिस है सर, तो डेट, लेकिन वो SBI अगर बोल दिया 1 अप्रैल को ज्वाइन करना सर, तो फिर उस स्टेज पर क्या करना करूं मैं सर? अभी रिजाइन डालूं कि 2 महीने बाद डालूं रिजाइन, 3 महीने वाले पे जाऊं? 3 महीने बाद में इसमें जाइए। अच्छा सर, उसमें कुछ नहीं होगा, नहीं आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 1 महीने में भी जा सकते हो, कोई इशू नहीं है, वो आपका लुकआउट है, वो देख के आप वो डेट देंगे सर, वो 1 अप्रैल को ज्वाइन करने देंगे वो? बिल्कुल देंगे।